हेलो एवरीवन, मेरा नाम अस्मिता है और मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते पास्टर मोसेस डेविड ने हमें डिवाइन एक्सचेंज सीरीज के पार्ट 1 में ये सिखाया था कि कैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे सारे दुखों को उठा लिया और रिटर्न में हमें आशीषों को दिया। आज पार्ट 2 में वो हमें सिखाने जा रहे हैं कि क्रॉस का इम्पोर्टेंस क्या है, यीशु मसीह आखिर क्रूस पर गया क्यों। पर वचन में जाने से पहले आइए एक सुंदर से गीत को सुने। हालेलुया। जो यीशु ने किया उससे दुश्मन हार जाता है। हालेलुया। और आपको और मुझे जयवंत कर दिया। लेट्स सिंग दैट टू हिम। देखो जरा हारा हुआ है दुश्मन मेरा, जागो जरा जयवंत हुआ है मेरा यीशुआ। देखो जरा हारा हुआ है दुश्मन मेरा, जागो जरा जयवंत हुआ है मेरा यीशुआ। देखो जरा हारा हुआ है दुश्मन मेरा, जागो जरा जयवंत हुआ है मेरा यीशुआ। मार्ग सत्य और तू ही जीवन है, जग की ज्योति तू जग से बढ़कर है। मार्ग सत्य है, मार्ग सत्य और तू ही जीवन है, जग की ज्योति तू जग से बढ़कर है। दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। इस जमीन पे और आसमानों में कोई नाम ऐसा नहीं है जो यीशु के ऊपर हो। हालेलुया। The Bible says his name is above every other name, and at the name of Jesus every knee will bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. इस ज़मीन पे आसमान में दूसरा कोई नाम नहीं है। इस ज़मीन पे आसमान में lift up the name of Jesus. दूसरा कोई नाम नहीं है। Sing it again. इस ज़मीन पे, इस ज़मीन पे आसमानों में दूसरा कोई नाम नहीं है। इस ज़मीन पे आसमानों में दूसरा कोई
मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है तू। 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 मेरी आशिकी, तू मेरी आशिकी, मेरी आशिकी है तू। मेरी आशिकी, मेरी आशिकी, मेरी आशिकी है तू। यीशु। Thank you, Jesus. Thank you that you came for me. एक छोटे बच्चे के जैसे तूने जन्म लिया प्रभु, क्योंकि तू मुझे बचाना चाहता था। पापों की खींच से मुझे निकालना चाहता था। तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर बना था प्रभु। हम में से हर एक को तूने उस दिन देखा और कहा इनके लिए मैं जाऊंगा। थैंक यू जीसस। जो सबसे महान, सबसे ऊपर प्रभु तू हमारे लिए आया। You stepped down into darkness just to open my eyes so that I would see you, Lord. Thank you, Lord. Lord, when you were born, there were angels surrounding you. There were shepherds. There were wise men. There were people around you worshiping. And today, we gather, Lord, in our homes, wherever we are, Lord, just to lift up the name of Jesus. The one who is highly exalted above all else, who is the King over all. The Lamb of God who was slain, but today risen up. The Lion of Judah, seated on the right hand of the Father. We worship you. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all full of sin became poor. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say
You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Bow down before you. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my crown. You love me. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much It costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Jesus, Jesus, Lord, the Most High. You came for me, Lord. You came for me. You came for me. Oh, even when my eyes were not on you, you looked upon my life. Oh, you picked me up from the miry clay. You didn't want me to perish, Lord. Jesus, oh, मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मुझे अकेला नहीं छोड़ा यीशु। You so loved me. Everyone who calls upon the name of the Lord is saved. Hallelujah. Amen. That's the promise of our God. Yes, Jesus. If you call upon the name of Jesus, He will be there to save you. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Everyone lift up your voices and call on the name. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Today is the time to call on the name of the Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. Oh, we lift up the name, Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. Name of Jesus, Jesus.
The Son of God, Jesus Christ is here in our midst. जहां कहीं भी आप हैं, उसकी सजदा करें, क्योंकि वो आपके सामने है इस समय। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Lift up your hands. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Jesus, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। परमेश्वर ने हमारे लाइफ में बहुत से भले काम किए हैं, और जब हम परमेश्वर के भवन में बोते हैं तो वो एक थैंक्स गिविंग का ऑफरिंग ठहरता है। जैसा 2 Corinthians 9:11 में लिखा है, यू विल बी एनरिच्ड इन एवरी वे सो दैट यू कैन बी जनरस ऑन एवरी ओकेजन एंड थ्रू योर जनरॉसिटी विल रिजल्ट इन थैंक्स गिविंग टू गॉड। तो इस समय जब अपर रूम चर्च के अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शेयर किए जा रहे हैं, हम पूरे थैंक्स गिविंग के हार्ट से परमेश्वर के भवन में बोए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, फिर जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, फिर जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, फिर जी उठा। फिर से एक बार उसे कहें, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, फिर जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, यीशु।
मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। उससे कहे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ यीशु। मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ यीशु। Today he is your friend, closer than a brother, closer than your best friend. All you need to do is lift up your eyes to Jesus. यारों का यार मेरा यीशु है, आपकी राह देखता है आज। He's waiting for you. He's reaching out to you. If you lift up your hands towards Him, if you lift up the name of Jesus today, दोस्त है मेरा यार, सब कुछ है मेरा। तू दोस्त है मेरा यार, सब कुछ है मेरा। तू दोस्त है मेरा यार, this is your time. ये आपका समय है. Reach out to Him. Reach out to Him. सब कुछ है यीशु को पकड़ ले, उसे थाम ले. दोस्त है मेरा यार, Thank you, Jesus. सब कुछ है मेरा। दोस्त है मेरा यार। तुझको थामे रहूं, मैं तुझको थामे रहूं यीशु। मैं तुझको थामे रहूं, मैं तुझको थामे रहूं, मैं तुझको थामे रहूं यीशु। That's a cry of our heart. मैं तुझको थामे रहूं, मैं तुझको थामे रहूं, मैं तुझको थामे रहूं यीशु। हाय प्रेज लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं डिवाइन एक्सचेंज, दूसरा राजा इसका 6वां अध्याय 1 वचन से लेकर 7 वचन तक हमने उसमें देखा। और लास्ट पार्ट में जब मैंने आपको छोड़ा था तो मैंने आपको बताया कि कैसे यीशु मसीह के साथ हमने लेन देन को कर लिया है। और जैसे हमने यीशु के साथ लेन देन कर लिया, हमने अपने पाप उसे दे दिया, हमने बीमारी दे दिया, हमने गरीबी दे दिया, अपने श्रापों को दे दिया, हमने अपनी मृत्यु को यीशु मसीह को दे दिया। तो उसके साथ यीशु मसीह ने क्या किया है उसके विषय में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। मगर हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 6वां अध्याय का 7वां वचन। जब लोहा तैर कर ऊपर आने लगा तो क्या हुआ? देखो, तैर के ऊपर आया तो पढ़ेंगे। हाँ, उसने कहा हाँ। उसे उठा ले। तब अलीशा ने उससे कहा उसको उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। तब उस व्यक्ति ने हाथ बढ़ाकर उस लोहे को ले लिया। बट नाउ सुनो, जब कुल्हाड़ी में से जब लकड़ी के डंडे को छोड़कर वो लोहे का भाग निकल के भाग जाता है तो आप दोबारा उसको लगाते हैं। और आपको याद होगा आप उसको कैसे लगाते, पता है? जिसको नहीं मालूम मैं उनको भी बताना चाहता। जब उसको लकड़ी का डंडे को उसके अंदर डालते हैं लोहे के उस भाग में, तो एक हथौड़ा लेते हैं, एक खीला लेते हैं और उसमें ठोकते हैं। और खीला जो है ना वो लोहे में नहीं घुसता है, मगर खीला लकड़ी में घुसता है।
मैंने आपको पहले भी बताया, इस कहानी में लकड़ी जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है और लोहा मनुष्य को दर्शाता है। मैंने कहा प्रभु छोड़ के भागा तो लोहा था, मगर कीला लकड़ी के अंदर क्यों घुस रखा है? बोले इसलिए लकड़ी में घुस रखा ताकि लोहे की और उसकी पकड़ मजबूत होने पाए। मैं आपको बता दूं, भागे तो हम मनुष्य थे संसार के पापों की ओर, मगर एक दिन हथौड़ा लिया गया, कीला लिया गया और यीशु मसीह के हाथों और पैरों में ठोक दिया गया। और जब कीला यीशु के हाथ में और कीला यीशु के पैर में ठुका, तब आपकी और मेरी पकड़ परमेश्वर के साथ मजबूत हो गई। एक नया रिश्ता, एक प्रेम के रिश्ते की पकड़ बन गई है। इस ओल्ड टेस्टमेंट के इस पार्ट में ब्यूटीफुल चित्र हमारे जीवन का उपाय दिखाया गया। मगर यीशु मसीह के हाथों और पैरों में कीले ठोकने से पहले उस पूरी स्टोरी में क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं, जिसके विषय में पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों इसके पहले अध्याय के 18 वचन में कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, मगर हम उद्धार पाए हुओं के लिए सामर्थ्य है। कैसे सामर्थ्य है? क्या है क्रूस की कथा? क्या हुआ था? ध्यान से सुनना। उस रात जब प्रभु भोज खत्म हुआ और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गत्समनी के बगीचे में आया, तब उस रात को यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना कर रहा था। ध्यान से सुनो, प्रार्थना कर रहा था और बड़े तड़पन से प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना जैसे खत्म हुआ, वचन बोलता है लहू की बूंदे के नाई उसका पसीना टपकने लगा। उस समय शायद यीशु मर जाता, मगर बाइबल का वचन बताता है वो स्वर्गदूत आके उसकी सेवा टहल किए। यीशु मसीह बगीचे से बाहर आया, उतने में यहूदा जिसने यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच दिया था, रोमन सोल्जर्स और सूबेदारों के साथ में आया। रोमन सोल्जर्स जो बड़े क्रूर गिने जाते हैं, उन लोगों के साथ में तलवार और भाले के साथ में आया। ध्यान से सुनो, मुझे चित्र दिखाई देता है लाखों स्वर्गदूत इस दृश्य को देख रहे होंगे, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का सृजनहार जिसको देखकर मनुष्य जी नहीं सकता था, अब मनुष्य उसके विरुद्ध काम कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, मनुष्य उसके अगेंस्ट हो गया है। और वे लोग यीशु मसीह के मुंह से एक आवाज सुनने के लिए रुके हुए हैं स्वर्गदूत कि यीशु आवाज दे, और 12 टुकड़ियां स्वर्गदूत दौड़ के यीशु की मदद के लिए आए। मगर आपको मालूम, पूरी स्टोरी में यीशु ने कभी भी स्वर्गदूत को आवाज देकर खुद के बचाव के लिए प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि इस कहानी में यीशु अपने आप को नहीं, हमें बचाने के लिए काम करता है। आज बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, यदि यीशु परमेश्वर है तो उसने अपने आप को क्यों नहीं बचाया? अरे वो अपने आप को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए काम नहीं कर रहा था, वो तुझे बचाने के लिए काम कर रहा था। मनुष्य वो हमें बचाने के लिए काम कर रहा था, इसलिए उसने स्वर्गदूतों को आवाज नहीं दिया। मगर ध्यान से सुनो, उस समय जब यीशु को पकड़ लिए वे लोगों ने और पकड़कर यीशु मसीह को वे लेकर जा रहे थे, यीशु मसीह को कोई पीछे से लात मारता था, कोई उसे पीछे से मार के कहता था ए भविष्यद्वक्ता, तू बता किसने तुझे मारा, तू तो भविष्यद्वक्ता है ना। मगर यीशु चुपचाप रहा, यीशु कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। वहां बाइबल का वचन है बताता है जब वे लोग यीशु मसीह को पकड़ने आए, उन्होंने यीशु मसीह से पूछा क्या तू ही नाजरत का यीशु है, क्या तू ही परमेश्वर का बेटा, क्या तू यीशु है? यीशु मसीह ने कहा हाँ मैं हूं। और वचन बोलता वे सब औंधे मुंह के बल गिर गए। इतना पावर जब यीशु ने बोला ना, उसके मुंह से रिलीज हुआ कि औंधे मुंह के बल गिर गए। तब यीशु ने उनको कहा उनको वापस से उठाओ, और कहता जो करने आए तुम करो। तो मैंने बोला जीसस, जब आपको उनके साथ जाना ही था तो आपने पहले क्यों गिराया उनको? यीशु ने कहा इसलिए गिराया कि तू जान सके मोसेस, उनकी ताकत ने मुझे क्रूस पर नहीं लेकर गया, मेरी मोहब्बत जो तेरे लिए है ना, उस कारण मैं क्रूस पर गया हूं, उस कारण मैं क्रूस पर अपनी जान देने के लिए गया। वे मुझे नहीं ले जा सकते थे, मैं अपनी मर्जी से तेरे लिए कीमत चुकाने के लिए गया। और तब यीशु मसीह जब वहां गया, पिलातुस राजा ने उसको पकड़ लिया। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह को बार बार पूछा गया, अलग अलग अदालतों में उसे खड़ा किया गया, पिलातुस राजा के सामने, फारो राजा के सामने, अलग अलग स्थानों में खड़ा किया गया, और हर जगह से एक ही आवाज थी, वो निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं। ये दुनिया की पहली और आखिरी अदालत थी जिसमें किसी को निर्दोष बोलने के बाद सजाए मौत सुनाई गई, क्योंकि निर्दोष बोलने के बाद तो बाइज्जत बरी किया जाता है। मगर ये इसलिए यीशु मसीह को निर्दोष बोलने के बाद सजाए मौत दी गई क्योंकि शास्त्रों में लिखा था किसी निर्दोष का लहू पापी संसार के लिए बहना जरूरी है। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, और पकड़ने से पहले फारो राजा ने यह सोचा उस समय में इस यीशु को कैसे बचाऊं, और उसने कहा एक काम करो, इसे कोड़ों की मार मारो
और फिर इसे छोड़ दिया जाए। मैं इसे मार डालने लायक कोई दोष इसमें नहीं देखता। मगर पिलातुस राजा जानता नहीं था ये प्लान उसका नहीं है। 750 साल पहले परमेश्वर ने यशाया के द्वारा ऑलरेडी बता दिया था कि हमारे अधर्म के हेतु वो मारा जाएगा, कुचला जाएगा और उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह को मारने के लिए लेके जाया गया। यीशु मसीह को उन चाबुकों से, 3 रस्सियों से लिपटे हुए, एक एक में 4-4 हुक थे। उससे जब वे यीशु मसीह के बदन पर मारते थे तो मांस के टुकड़े बाहर निकल कर आते थे। लोथे के लोथे मांस के टुकड़ों के बाहर निकल कर आते थे। उसकी हड्डियां दिखने लग गई थी। इसलिए भजन का लिखने वाला जब उसके बारे में वर्णन करता है तो कहता, मेरी हड्डियां मुझे देखकर हंसती है। उसकी हड्डियां नजर आने लग गई थी। इतना भयंकर तरीके से यीशु को मारा, नसें फट गई थी। मगर सुनो, जब चाबुक की मार यीशु को मार रहे थे ना, तब यीशु नहीं मरा। मालूम क्यों नहीं मरा? मैंने पिता से पूछा, पापा यीशु मसीह को आपने जल्दी क्यों नहीं मरने दिया? रात से वो तड़पते तड़पते दूसरे दिन, तीसरे पहर को वो मरा। यीशु जल्दी क्यों नहीं मरा पिताजी? पिता ने कहा, बेटा इसलिए क्योंकि यीशु कुछ चीजें मार के मरा है। और मैं आपको वही बताना चाह रहा, यीशु क्या मार के मरा। ध्यान से सुनिए, आपको पता चल जाए, इन बातों पर विश्वास करें, तभी क्रूस की कथा आपके लिए सामर्थ्य बन जाएगी। ध्यान से सुनो, क्या मार के मरा यीशु? जब यीशु को 39 कोड़े मारे गए, बदन की नसें फट गई और पूरा शरीर छन्नी छन्नी हो गया। यशाया कहता, जैसे मिट्टी खेत में, जैसे हल चलने के बाद मिट्टी उखड़ जाती है, उसके बदन से मांस ऐसे उखड़ गया था। मगर तब यीशु नहीं मरा। मगर मालूम क्या मरा? आपकी मेरी बीमारी मर गई। आपके मेरे देह में आने वाली बीमारी मर गई, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने देह में उस बीमारी का इलाज कर लिया। आज मैं आपसे कहना चाहता, विश्वास कर लो और आपकी बीमारी से आप चंगे हो जाओगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दवाइयां कितना काम करती है, नहीं करती है। मगर अपने उस बीमारी की दशा में जहां डॉक्टर्स ने हाथ उठा लिया, यदि आप विश्वास करोगे तो यीशु मसीह के देह में जो चंगाई आपके और मेरे लिए हो गई है, उपलब्ध है, वो इसी समय आपके देह में रिलीज होगी। जैसे मेरे भाई विल्सन के शरीर में रिलीज हुई थी जब डॉक्टर ने कह दिए थे कि वो 3 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा। आज 30 साल के ऊपर हो गया, विल्सन जिंदा है, शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं। मेरे परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। जब इसी वचन की घोषणा किया, यीशु के मार खाने से विल्सन चंगा हो गया है। जब उसके लाइफ पर यह वचन रिलीज किया गया, विश्वास किया गया, ये सत्य है, तो क्रूस की कहानी विल्सन के लिए सामर्थ बन गई। आज मैं आपसे कहता, उस बीमारी में आप नहीं मरोगे यदि आज आप विश्वास कर लोगे। यीशु के मार खाने से आप चंगे हो गए। देखो तो आपकी चंगाई के लिए उसने कितना दर्द सहा, ताकि आप अपने दर्दों से आजाद हो जाए, ताकि आप अपने दुख और तकलीफों से आजाद हो जाए। क्यों ना आज उस परिस्थिति में पड़े पड़े यीशु से कहे, लॉर्ड मैं यहाँ हूं, फादर आई नीड योर हेल्प। वो बीमारी जिसने आपको जकड़ के रखा था, यीशु ने उसका इलाज कर दिया। नंबर 2, यीशु मसीह को वे लोग पकड़कर यीशु मसीह को राजा के पास दोबारा लेकर आए और बोले उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार दो। तब यीशु को ऊपर गुलगुता की पहाड़ी पर लेकर गया। मैं जल्दी जल्दी आपको लेकर जा रहा, ध्यान से सुनो। पहाड़ी पर लेकर गए और क्रूस पर लटकाने से पहले उन्होंने यीशु का वस्त्र निकाल दिया, यीशु को नंगा कर दिया। जब यीशु के कपड़े निकाल दिए, यीशु को नंगा कर दिया और उसे क्रूस पर लटका दिए, तब मालूम भाई, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु उसको कपड़ा निकालने की क्या जरूरत थी, उसे वस्त्रहीन करने की क्या जरूरत थी? प्रभु ने कहा, मोसेस, यीशु इसलिए नंगा हो गया क्योंकि अदन के बगीचे में तू नंगा हो गया था। अदन के बगीचे में तूने महिमा के वस्त्र को उतार कर तू नंगा हो गया था। तेरे नंगेपन की कीमत यीशु अपने नंगे बदन से चुका रहा था, ताकि तुझे वो महिमा का वस्त्र फिर लौट कर मिलने पाए। कितना अद्भुत कहानी आपके और मेरे जीवन के लिए यीशु मसीह ने कर दिया है। करो, ये क्रूस की कथा हमारे लिए सामर्थ्य है, हमारे आत्मिक नंगेपन को ढांकने की सामर्थ्य है कि वो फिर एक बार उस महिमा में हमें ढांक लेने पाए। सुनो ध्यान से, यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में प्रचार करने के समय में कहा,
नंगेपन की तुलना उसने अपने खुद की गरीबों के साथ में किया और ये कहा कि बहुत तेरे आएंगे और कहेंगे हमने कब प्रभु तुझे नंगा देखा, हमने कब प्रभु तुझे भूखा देखा, कब परदेसी देखा। और यीशु मसीह ने कहा इन छोटों में से छोटों के साथ जो तुमने किया वो मेरे साथ किया है। अर्थात यीशु मसीह ने मनुष्य के नंगेपन की तुलना अपने साथ में उसको किया और उस कारण यीशु का जब वस्त्र उतारा गया उसने मनुष्य के गरीबी का इलाज किया। आपको मालूम बाइबल का वचन कहता है अब गरीब कहे मैं धनवान हूं। मालूम जब यीशु के वस्त्र उतारे गए तो मैं विश्वास करता उसके उस जख्मी लहूलुहान देह में से एक वचन निकला और वो वचन ने मेरी गरीबी को मार डाला है। या तो आप इसको दंत कथा जानकर अपनी गरीबी की जिंदगी जियो, या तो आज कह दो लॉर्ड ये क्रूस की कथा मैं सामर्थ बनता हुआ देखना चाहता, मैं विश्वास करता तूने मेरी गरीबी का इलाज कर दिया, मैं गरीब नहीं मैं धनवान हूं क्योंकि परमेश्वर ने सब प्रकार की आशीष मेरे लिए रिलीज कर दिया है। नंबर 1 उसने आपकी बीमारी का इलाज कर दिया। नंबर 2 उसने आपकी गरीबी का इलाज कर दिया। नंबर 3 ध्यान से सुनो, यीशु मसीह को वो लोगों ने कीले पे टंगा कर क्रूस पर लटका दिया और अब जब यीशु को क्रूस पर लटका दिया तुरंत यीशु नहीं मरा। मालूम क्यों? क्योंकि वचन कहता है गलती 3 अध्याय में वचन कहता है श्रापित है वो जो काट पर लटकाया गया क्योंकि उसने व्यवस्था के हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह जल्दी इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो मेरे श्रापों को मार डालना चाहता था। मेरे पास बहुत सारा समय नहीं आपको बताने के लिए कि श्राप किन किन मार्गों से आता है डिटेल में बताने के लिए, मगर जल्दी से आपको बताना चाहता 5 बातें हैं जिसके विषय में बाइबल बात करती है। नंबर 1 जब बाप दादाएं पाप करते हैं तो ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है बच्चों के जीवन पे कर्स आता है। नंबर 2 बाइबल का वचन ये बताता है जब हम खुद पाप करते हैं तो हमारे जीवन पे श्राप आता है। नंबर 3 बाइबल का वचन बताता है जब हम कमाई का 10वां भाग खा जाते हैं तो धन की बातों पर कर्स आता है। नंबर 4 बाइबल का वचन यह बताता है कि जब हम प्रभु का भोज अनुचित रीति से लेते हैं तो हमारे जीवन पर दंड, बीमारी, नाना प्रकार की चीजें आ जाती है। बाइबल का वचन इन सारी बातों को। और नंबर 5 जब कोई आपको श्रापित बातें बोले और आप उसको ग्रहण कर ले तब आपके जीवन पर श्राप आता है। इन 5 मार्गों से मनुष्य के जीवन पर श्राप आता है। मगर बाइबल का वचन कहता है व्यवस्था के वो सारे श्रापों को जो मनुष्य को दोषी ठहराते थे यीशु मसीह ने अपनी देह पर उसका इलाज कर दिया। डिवाइन हीलिंग, अलौकिक रीति से हमारे कर्स से हमको हील कर दिया। अब माँ बाप का श्राप, बाप दादाओं का कर्स हमारे लाइफ पर काम नहीं करता। जिस बात के विषय में इजकेल 13 अध्याय में परमेश्वर बाप ने कहा कि इजराइल में से मैं ये बोली को बंद कर दूंगा कि बाप ने अंगूर खाया और बच्चे के दांत खट्टे हुए, ये बातों को मैं बंद कर दूंगा, उसने बंद कर दिया। यीशु मसीह की देह में जब वो क्रूस पर लटका हुआ था मेरे बाप दादाओं के कर्सेस को उनकी गलतियों के द्वारा मुझ पर आने नहीं दिया। मुझ पर पितरों का श्राप नहीं है। इस झूठ पर बिलीफ नहीं करना, हम पर पितरों का श्राप नहीं है। बट वी आर फ्री पीपल, हम आजाद लोग हैं। क्यों मालूम? क्योंकि क्रूस की कथा हमारे लिए सामर्थ है। जो बिलीव नहीं करते उस पर, उन पर पितरों का श्राप होगा क्योंकि उनके लिए यह कहानी मूर्खता है, मगर हमारे लिए यह सामर्थ है। सो नंबर 1 मैंने आपको बताया उसने आपकी बीमारी का इलाज अपनी देह में कर दिया। नंबर 2 मैंने आपको बताया उसने आपके मेरे गरीबी का इलाज कर दिया, उसने आपके मेरे कर्स का इलाज कर दिया। मगर उसके बाद बाइबल का वचन बताता है जब यीशु क्रूस पर लटका हुआ था उसने जोर से चिल्ला के कहा पूरा हुआ। और जैसे कहा पूरा हुआ, ध्यान से सुनो, उसने आपके मेरे पापों से क्षमा पाने की कीमत को पूरा चुका दिया। शास्त्र में लिखा था 7 बार लहू के बहने से अशुद्ध शुद्ध हो जाएगा और यीशु मसीह की देह में से 7 बार अलग अलग स्थानों में लहू बहा, अलग अलग अंगों से लहू बहा और उस लहू बहाए जाने के द्वारा यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ और आपका मेरा शरीर पापों से आजाद हो गया। उसने कीमत को चुका दी, यीशु मसीह ने कीमत को चुका दी और इस मोसेस को पाप से छुड़ा लिया। पाप मेरा मर गया। उसके बाद बाइबल का वचन बताता है यीशु मसीह ने सर लटकाया और कहा मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में देता हूं और यीशु मर गया। बाइबल का वचन ये कहता है
मृत्यु जब हो जाती है तो पाप का वश नहीं चलता है। मृत्यु हो जाने के बाद पाप का पावर खत्म हो जाता है। खत्म कर दिया प्रभु ने पाप के पावर को। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सो अब यहां पर जैसे यीशु मसीह मर गया, उसकी मृत्यु में मेरी मृत्यु भी, मेरे पाप में जीवन की भी मृत्यु हो गई। इसलिए रोमियो की पत्री 6वें अध्याय में लिखा गया, हम यीशु के साथ मर गए तो फिर आगे पाप के लिए क्यों जिए। यीशु मसीह क्रूस पर अकेला मरे, मेरे लिए कोई लाभ का नहीं। ध्यान से सुनो, समझ लो क्या कहना चाह रहा। यीशु क्रूस पर अकेला लटक कर मरे तो मेरे लिए कोई लाभ का नहीं। क्रूस की कहानी मेरे लिए मूर्खता है। मगर यीशु क्रूस पर पाप में पुराने मोसेस को लेकर मरे तो मेरे लिए क्रूस की कहानी सामर्थ्य है, क्योंकि वहां से नई शुरुआत है, वहां से सुंदर बातें है, वहां से डिवाइन एक्सचेंज का पावर बहता है। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह क्रूस पर अकेला नहीं मरा। वहां ये मोसेस कहता, ले मुझको तू ले, यहां से आगे मैं तेरे लिए जीऊंगा लॉर्ड, क्योंकि यहां से आगे रिजरेक्शन है। और रिजरेक्शन में पतरस कहता नया जन्म है, नए जन्म का पावर है। इसलिए यहां पर मोसेस को मरना जरूरी है, मनुष्य को मरना जरूरी है। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह ने वो चीजें जिसने हमको बांध के रखा था झाड़ियों के नहीं, उन 5 चीजों को, उन सारी चीजों को मार कर यीशु क्रूस पर मरा, मार कर यीशु खत्म किया। और खत्म करने के बाद, ध्यान से सुनो, इतना बताकर वचन को बंद करूंगा। उन सारी चीजों को खत्म करने के बाद, तीसरे दिन जी उठने के बाद, प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला कहता, देख अब वो तेरे द्वार पे खड़े हुए खटखटाता है। यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े हुए खटखटाता है और कहता, जो द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। क्या करोगे यीशु आप भीतर आकर? मालूम क्या करेगा यीशु? ध्यान से सुनो, वो आपको मार देगा। जब वो आपके अंदर आएगा तो वो आपको मार देगा। और यहां से आगे आप नहीं, मगर यीशु आप में जिएगा। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने में। जब मैं कह रहा वो आपको मार देगा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि यीशु घातक है और घात करने के लिए आया ना, मगर वो सारे मैंपन को, वो सारी चीजें जो आपको दुनिया में खींचती है, वो सारी बातें जो पाप के दासत्व में आपको ले जाती है, वो सारी अंदरूनी चीजों को मार डालेगा। संसार का लालच, संसार की चीजें, संसार के लिए अंदर से उठने वाले डिजायर्स खत्म कर देगा और यीशु हमारे अंदर जिएगा। ध्यान से सुनो, मालूम क्यों मारेगा? मालूम, क्योंकि पाप पैदा करने की फैक्ट्री हमारे अंदर है। इसलिए वचन कहता, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। कैसे अभिलाषा गर्भवती होती है? कहां होती है? हमारे अंदर अभिलाषा होती है। और वो अभिलाषा हमारे अंदर जो है, जो डिजायर हमारे अंदर है, वो प्रेग्नेंट होता है। यीशु मसीह जब मार देना तो वो डिजायर खत्म हो जाएगी, वो इच्छाएं खत्म हो जाएगी। इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए चेले कहते हैं हम रोज मरते हैं, हम रोज मरते हैं। क्यों मरते हैं रोज? मालूम, क्योंकि उस मरने के द्वारा इस संसार और संसार की चीजों पर हम जयवंत होते हैं ना। ध्यान से सुनना, शैतान कभी यह समझ ही नहीं पाया कि मृत्यु में अनंत काल का जीवन है। वो कभी समझ ही नहीं पाया, इसलिए वो पूरी ताकत लगाया यीशु को मारने के लिए। ध्यान से सुनो, उसको लगा पाप से मैं मृत्यु लेकर आ जाऊंगा। उसको लगा मृत्यु जो है वो अंत फल है मेरे पावर का, और एक बार मृत्यु हो गया तो मैं लड़ाई जीत गया। मगर उसको ये नहीं मालूम, परमेश्वर ने मृत्यु में से ही धार्मिकता की शुरुआत कर दिया। पाप का अंत मृत्यु है, पाप की शुरुआत मजा है, मगर उसका अंत मृत्यु है। मगर सुनो, धार्मिकता की शुरुआत में मजा नहीं है, मगर उसका अंत अनंत काल का जीवन है। मृत्यु है धार्मिकता की शुरुआत में, मौत है। एक जीवन मर जाता है संसार के लिए, मगर वहां से वो अनंत काल के लिए जी उठता है, इटर्निटी के लिए वो जी उठता है। ये डिवाइन हीलिंग की जरूरत है। यीशु मसीह में सब प्रकार की चंगाई का समावेश है। आपको श्रापों से छूटने के लिए किसी और के पास, आपको गरीबी से छूटने के लिए किसी और के पास, आपको पापों के छुटकारे के लिए किसी और के पास, मृत्यु से बचने किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने क्रूस की कथा में अपने अंदर इन सारी बातों का, मनुष्य के प्रॉब्लम का इलाज कर दिया है। आज हमें उसको समर्पण करने की जरूरत है और यह कहने की जरूरत है,
Here I am, Lord, I submit my life to you, Lord. और मैं आपसे विनती करके करता हूं, लॉर्ड, लो मेरे जीवन को, और जो उपाय आपने क्रूस पर कर दिया वो मेरे जीवन में व्यर्थ ना जाने पाए। आज एक छोटी सी सच्ची प्रार्थना करिए और ये डिवाइन हीलिंग आपके लिए उपलब्ध है। आइए मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैंने इस वचन को सुना है। प्रभु यीशु, क्रूस की कथा मेरे लिए सामर्थ बन जाए। आज जो इलाज आपने मेरे लिए कर दिया, मैं उसे ग्रहण करता हूं। मैं अपने पापों को आपको दे देता, मृत्यु को आपको दे देता, गरीबी आपको दे देता, श्राप आपको दे देता हूं, बीमारी आपको दे देता हूं, आपकी धार्मिकता ले लेता हूं, आपका जीवन ले लेता हूं, आपकी भरपूरी ले लेता हूं। मैं अपना समर्पण आपके हाथ में करता हूं। मेरे पापों को क्षमा करो। आमेन, आमेन। ये एक छोटी सी प्रार्थना आपको इटर्निटी के लिए सेव करती है। मे गॉड ब्लेस यू। हम आशा करते हैं कि आज के एपिसोड के द्वारा आपने आशीष को पाया है। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है, या आप किसी विषय पे काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है। अपर रूम चर्च की मीडिया मिनिस्ट्री आप लोगों की प्रार्थनाओं और आर्थिक योगदान का नतीजा है। अगर आप हमारे सेवकाई से आर्थिक तरीके से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी बैंक डिटेल्स भी स्क्रीन पर है। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय। टिल देन हैव अ ब्लेस्ड टाइम। बाय।